السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباؤ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کائنات رب جل جلالہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ توسل سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، آج میں ایک ایسے موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ موضوع ایک ایسا ہے، محبت بھرا موضوع ہے، اور اس موضوع کے اندر جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بندہ صبر کرنے والا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ صبر کے دامن کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اکثر اوقات گلی محلے کے اندر ہماری مسجد کے جو امام ہوتے ہیں، ائمہ حضرات جو ہے، جو مسجد کی امامت کے جو ہے وہ ان لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، مسجد کی ڈیوٹی جو ہے وہ کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ امام پہ اس کو جو ہے وہ اپنا زر خرید غلام سمجھتے ہیں، یعنی جس کا دل کرتا ہے وہ آ کے امام پہ جو ہے وہ جس طرح کے دل کرے بات جملے کسنا شروع کر دیتا ہے، باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دوستان محترم، بات یہ ہے کہ اکثر اوقات جو امام مسجد ہوتے ہیں وہ جناب لوگوں کی باتیں سن کر صبر کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ کیا وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ اکثر اوقات وہ لوگوں کی باتیں سن کر پھر بھی صبر کیوں کر لیتے ہیں، برداشت کیوں کر لیتے ہیں؟ حالانکہ اس دور کے اندر جو ہے یہ نفس نفسی کا عالم ہے۔ کون باپ کی بات اس کے اپنے بچے جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے، ماں کی بات اس کی بیٹیاں برداشت نہیں کرتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امام مسجد جو ہے وہ اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے نمازیوں کی اگر کوئی تلخ بات کرے تو ان کی بات کو برداشت کیوں کرتا ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے؟ اس بات کی گہرائی میں کبھی ہم گئے ہیں؟ ایک شعر ہے، وہ شعر میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، اور ہمارے اکثر لوگوں کو چاہیے کہ اپنے امام مسجد کی عزت کرو، اپنے امام مسجد کی رسپیکٹ کرو۔ اپنے جو بندہ اپنے امام کی عزت نہیں کرتا اور اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، وہ اپنی نمازوں کو ضائع کر رہا ہے، وہ اپنی نمازوں کو ضائع کر رہا ہے۔ پلیز اپنی نمازوں کو ضائع مت کرو، امام کی عزت کرو۔ اگر کسی معاملے کے اندر جو ہے اگر امام کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے تو بیٹھ کر بات کو جو ہے وہ احسن طریقے کے ساتھ مسئلے کا حل نکالو۔ اختلاف کرنا یہ حق نہیں ہے۔ امام مسجد کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک نہ رکھنا یہ جو ہے نا یہ شیان شان نہیں ہے۔ یہ کس طرح اور پھر امام کے صبر پہ قربان جائیں۔ یہ امام پتہ اتنا صابر کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں شعر ہے، ہم نے تو ہر دکھ کو محبت کی اذیت سمجھا، ہم نے تو ہر دکھ کو محبت کی اذیت سمجھا، ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے، کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، اگر ہم عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ ہمارے کچھ ائمہ حضرات ہیں، امام مسجد ہیں، جو لوگوں کی باتیں سن کر صبر کرتے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے تو اللہ رسول کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم نے تو یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے جو لوگ ہمیں جو مرضی کہتے رہے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، ہم نے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کے گھر کی نوکری کرنی ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو دوستان محترم، جو ہمارا امام ہے مسجد کا، وہ کسی علاقے کا ہو، میں یہ بھی نہیں کہتا، چونکہ میں خود تو اہل سنت بریلوی ہوں، لیکن اس معاملے کے اندر علماء کی قدر کے معاملے کے اندر جو ہے وہ کسی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، جو آپ کی مسجد کا امام ہے، جو آپ کے محلے کی مسجد کا امام ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت اپنی مسجد کے امام کے ساتھ محبت کرو، اپنی مسجد کے امام کے ساتھ پیار کرو، اپنے مسجد کے امام کی ضروریات کا خیال رکھو۔ جب آپ اپنی مسجد کے امام کی ضروریات زندگی کا خیال کرو گے، اور انشاءاللہ پھر دیکھنا وہ دن دور نہیں ہے کہ رب کائنات رب جل جلالہ آپ کی زندگی میں مزید خوشحالیاں پیدا فرما دے گا۔ امام مسجد کی عزت کرو، امام مسجد کے ساتھ پیار کرو۔ امام مسجد کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، وہ ہمارے جو ہے ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور پھر ہم بدلے کے اندر امام مسجد کو کیا جی جناب 6,000 دے دو،
8,000 दे दो पर मंथ, 10,000 दे दो, 12,000 दे दो, ज़्यादा छाल मारो 15 दे दो। और फिर जब तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा होता है पता क्या करते हैं, अच्छा वो बैठकर जो है वो तनख्वाह बढ़ाता है, तो जनाब जो कहता है मेरी 1.5 लाख है जी, गुजारा नहीं होता। और जब मौलवी साहब की तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है 200-500 बढ़ा दो, मौलवी साहब तो अल्लाह दिए खैरा नहीं। ओए हर तरफ अल्लाह की खैर है, जब तेरी 1.5 लाख से पूरी नहीं पड़ती मौलवी साहब की 15,000 से गुजारा हो जाएगा। इसलिए मौलवी साहब की ड्यूटी को समझो, मौलवी साहब के साथ जो है वो प्यार करो, मस्जिद के इमाम के साथ खलूस नीयत के साथ, जहाँ मिले अदब के साथ रिस्पेक्ट करो, इज़्ज़त करो। तो इंशाअल्लाह जब हम ये माहौल इस तरह का बना देंगे, फिर ये मौलवी बनने से कोई घबराएगा नहीं। अक्सर औकात लोग, मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं, वो बेचारे एम इस्लामियात करके, एम इस्लामियात से मतलब है दरस निज़ामी करके, हाफ़िज़ कुरान है, दरस निज़ामी करके वो अपने कारोबार में लगे हुए हैं। वजह पता क्या? मैंने कई दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हम मस्जिद की इमामत करें, लेकिन यहाँ लोगों की बातें नहीं सुन सकते हम। बाद औक़ात कई लोग तो हद से इतना गुजर जाते हैं कि वो इमाम मस्जिद की इज़्ज़त करना ही वो भूल जाते हैं कि ये हमारा इमाम है, हम इसके इक़्तिदा के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। मेरा भाई अपने नमाज़ें ज़ाया ना करो, अपने इमाम मस्जिद की इज़्ज़त करो, इमाम मस्जिद के साथ जो है वो मोहब्बत करो, खुलूस के साथ उससे जो है वो अकीदत करो, उससे प्यार करो। इमाम मस्जिद अगर बिला वजह कोई मामला ज़िंदगी के आ जाते हैं, उसको अच्छे तरीके से बैठकर मामले को हैंडल करो। इमाम मस्जिद के साथ बेरुखी अच्छी बात नहीं है। इमाम मस्जिद का कसूर ये है कि जब बच्चा पैदा होता है कान में अजान पढ़ देता है, जब जवान होते हैं निकाह पढ़ाने के लिए पहुंच जाता है, और जब जनाब मर जाते हैं और जनाब मरने के बाद गुस्ल देता है, फिर बाद में जनाजा पढ़ाता है, फिर हाथ उठाकर बख्शिश की दुआ करता है। इमाम मस्जिद का कसूर ये है। इमाम मस्जिद के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। इसलिए खुदा का वास्ता है इस हद तक ना गुजरो कि लोग मौलवी बनना बंद कर दें। लोग जनाब हमारे अच्छे खासे लोग वो दुकानें बना के बैठ गए, यार वहाँ हमें 1000 मिलता है या 500 मिले, किसी की बातें तो नहीं सुननी पड़ती, किसी की दिल आज़ारी। हम मस्जिद में अल्लाह को राज़ी करने के लिए आते हैं, लेकिन जिसने हमें बताना है अल्लाह को राज़ी कैसे करना है, अगर हमने उसका जीना हराम कर रखा है, अगर हमने उसकी ज़िंदगी को अजाब बना रखा है, फिर हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए अपने मोहल्ले के इमाम के साथ, ये नहीं कि अपने मोहल्ले के साथ वाला मोहल्ला हो, जहाँ भी जाओ इमाम मस्जिद के साथ जो है वो मोहब्बत करो, प्यार करो इमाम मस्जिद के साथ। ये फिर ये मुआशरे के अंदर मोहब्बत का पैगाम आम करो। इमाम मस्जिद एक बड़ा ऊंचा मनसब है, बहुत ऊंचा मनसब है। इमाम का मतलब सरदार होता है, और जितने भी हमारे अहमा हज़रात हैं जो इमाम मस्जिद हैं वो हमारे सरदार हैं। हमारी नमाजों हम उनके पीछे नमाज पढ़ के कहते हैं कि पीछे इस इमाम की, और फिर बाद में बदखोइयाँ गीबतें भी हम उसी की करते हैं। ये किस तरह की गीबत ना करो, चुगलियाँ ना करो, इमाम मस्जिद की इज़्ज़त करो, इमाम मस्जिद के साथ मोहब्बत करो, इमाम मस्जिद की दिल खोल कर खिदमत करो। तनख्वाह को ना देखो, अपनी तरफ से माहाना हफ्तावार कुछ ना कुछ इमाम मस्जिद की खिदमत करो, इसलिए कि इमाम मस्जिद खुशहाल होना चाहिए। जब इमाम मस्जिद खुशहाल होगा वो सही मानों के अंदर दीन मुस्तफ़ा की तर्जुमानी करेगा। अब यहाँ पे जनाब कहते जी मौलवी साहब सब्र करो, वो सब्र सिर्फ मौलवी के लिए है। अच्छी बात है, सब्र करना चाहिए, लेकिन मेरा भाई एक बिल फ़र्ज़ मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं मौलवी हूँ, मैं सब्र कर लूँ, लेकिन बच्चे हैं ऐसे ही, हर एक जैसे आपको अपने बच्चे प्यारे हैं ऐसे मौलवी साहबान को भी अपने बच्चे प्यारे हैं। जैसे आप अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करते हैं, ऐसे मौलवी हजरात भी अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करने का हक है उन्हें। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, मौलवी साहब भी बासियत इंसान, उनका भी दिल करता है हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें। इसलिए अपने इमाम मस्जिद की खिदमत करो, जो जहाँ रहता है अपने इमाम गली मोहल्ले के इमाम, और इसके अंदर मकतबा फ़िक्र, कोई किसी मकतबा फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखने वाला हो
वो देवबंदी हो, वो वहाबी हो। यार अगर शराब पीने वाले और नशा करने वाले और जुआ खेलने वाले अगर एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या वहाबी देवबंदी सुन्नी एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते? रिश्तेदारी करते वक्त तो हम नहीं देखते ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये देवबंदी, ये कौन है। उस वक्त तो हम देखते हैं इसकी पर्सनैलिटी क्या है, लड़का क्या बिजनेस करता है, लड़का नौकरी क्या करता है, लड़की वालों का कारोबार क्या है, लड़की वाले जो है वो अमीर हैं गरीब हैं, उनका जो है वो ख़ानदान किस कदर है। यानी वहाँ पे हम नहीं देखते मसलक पे। मसलक बेस के इख्तलाफ को ख़त्म करो। मैं मसाजिद जितने भी उलमा मस्जिदों के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, हर आलम दीन की इज़्ज़त करो, हर आलम दीन के साथ प्यार करो। जब बंदा अल्लाह के दीन के आलिम के साथ मोहब्बत करता है, और कभी कभी कोशिश किया करो अपनी मस्जिद के इमाम को अपने साथ बिठा कर खाना खिलाओ, अपनी मस्जिद के इमाम को अपने पास बिठाकर अपने साथ बिठाकर। और ख़त्म का खाना तो सभी खिला देते हैं, कभी मज़ा है ना कि इमाम मस्जिद को कहे कि हज़रत जी आज मैंने आपकी दावत की है, आज खाना आपने मेरे साथ जो है वो दस्तरखान पे बैठ कर खाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आलम दीन के साथ बैठकर 2 लुकमे खाना खाएगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा, एक जन्नत पूरी दुनिया से बड़ी होगी। जो आलम दीन के साथ बैठकर खाना खाएगा। इसलिए उलमा की कदर करो, उलमा से प्यार करो, उलमा से। ये हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, ये हमें नमाज पढ़ाते हैं, ये जो है ये हमारे दीन के रहबर हैं, हमारे तर्जुमान हैं। इनकी वजह से हमारे बच्चों तक हम तक दीन पहुंचा है, और इनकी वजह से क़यामत तक जो है वो उम्मत मुसलमा के घरानों की तरफ, उम्मत मुसलमा के हर फर्द के पास जो है वो दीन पहुंचता रहेगा। मेरा भाई अगर किसी जगह पे किसी के अंदर कोई खामी भी हो उसको हाईलाइट ना करो, उसको मुआशरे के अंदर आम ना करो, पंचायतें ना लगाओ, बल्कि ahsan तरीके के साथ उसको बोलो कि जी आपकी शान बड़ी बुलंदो बाला है, हम बात नहीं करना चाहते लेकिन खुदा थोड़ा सा परहेज़ करो। ये इस तरह के मुआमलात, यानी अगर हमारा बच्चा कोई इस तरह की हरकत करे या कोई मुआमलात हो जाए तो हमारे बच्चे के साथ रवैया कैसा होता है। और यही अगर इमाम मस्जिद की तरफ से बात आ जाए, बात गलत है। इमाम मस्जिद सफ़ेद कपड़े की मानद है, और रंगदार कपड़े पे दाग लगा भी नज़र आता है लेकिन वो कम आता है, लेकिन सफ़ेद कपड़े पे दाग लगा ज़्यादा नज़र आता है। इमाम मस्जिद को भी अपने जो उसका मनसब है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए हर वो कदम भी जो है वो सोच समझ कर रखना चाहिए। और ऐसे ही पीछे नमाज़ पढ़ने वालों को भी चाहिए कि वो अपने इमाम की इज़्ज़त करें। अल्लाह ताला हम तमाम दोस्तों का हामी और नासर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमामी दोस्त को मेरा ये क्लिप जो है वो अच्छा लगा होगा, इसलिए कि इसके अंदर दर्द भरी बातें हैं। हम जो है उसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, उसी की बुराई करते हैं, हमारी नमाज़ें ज़ाया हो जाती हैं। अपनी नमाज़ों को ज़ाया ना करो। कहीं आपके बुराई करने की वजह से, आपके तलख रवैये की वजह से अगर कोई मुसल्ला रसूल को छोड़कर चला गया और सारी ज़िंदगी के लिए मस्जिद की तरफ जो है वो पीछे अपनी यानी अपनी नमाज तो पढ़ता रहेगा, अब उसने दीन को काम को छोड़ दिया, वो कारोबार में लग गया, तो उसके पड़ेगा। जब तबलीग नहीं कर रहा तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो पकड़ होगी, वो जिसकी वजह से वो ये सब कुछ छोड़ कर गया है, पकड़ उसकी होगी। इसलिए इमाम को साबर होना चाहिए, ये बात हक है, इमाम को साबर होना चाहिए, लेकिन नमाजियों को भी साबर होना चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ इमाम की तरफ ही, और नमाजियों को भी साबर होना चाहिए। बातें करते हुए परहेज़ किया करो। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमा के अफराद को 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए।